Good evening, everyone. Myself, Dr. Onimes. Today, we are going to discuss about the topic of obstetrics. That is hemorrhage in early pregnancy. In last class, we have already discussed about all the phases or all the stages of pregnancy. There are 4 stages of pregnancy that we have already discussed. 4 stages. 4 stages of pregnancy. At the last stage, that means the delivery of the placenta, and after the delivery of the placenta there is a chance of postpartum hemorrhage, that is pph. So here, the hemorrhage in early pregnancy, the most common cause is abortion in 95% cases. Means abortion हो गया. ओके और किस चीज में हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी और हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स. तो पीपीएच क्यों आ रहा है? इस पे भी हेमरेज होता है. पोस्ट पार्टम हेमरेज means bleeding per vagina within 24 hours after delivery. 24 घंटे के बीच में ब्लड जा रहा है. कितना अमाउंट? हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड passes either from vaginal delivery or from c-section. If it is more than 500 ml, that is pph. In cases of c-section, when hemorrhage is more than or less than equal to 1000 ml, it is also postpartum hemorrhage. आफ्टर डिलीवरी खून बहुत ज्यादा बह रहा है. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक एबॉर्शन. हेमरेज occurs 95% cases in cases of abortion. So what is abortion? Abortion means the expulsion or extraction from mothers of an embryo or fetus. मदर से जो fetus और embryo है वो एक्सपल्सन हो गया और एक्सट्रैक्शन किया है. एक्सट्रैक्शन बाय द मीन्स ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ मैन्यूवियर. किसी भी तरह का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिलीवरी किया जा रहा है, मतलब एबॉर्शन किया जा रहा है. तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एक्सट्रैक्शन, जिसका वेट होगा 500 ग्राम्स और लेस व्हेन इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. 500 ग्राम और 500 ग्राम से थोड़ा कम होगा अकॉर्डिंग टू WHO, एंड इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है, मतलब अबाउट टू डाई. This 500 gram of fetal development is attained approximately 22 weeks, means 154 days of gestational age. 154 days of gestational age. Okay, so what is gestational age? In last class I have already said gestational age. Gestational age means first day of last menstrual period जो है, और जिस दिन तक काउंट किया जाता है उस दिन तक जो एज निकल के आता है आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ अ वुमेन, दोज हु आर गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट टाइम इज जेस्टेशनल एज. जेस्टेशनल एज इज 22 weeks. Now come to the classification of abortion. One is spontaneous or miscarriage, another one is induced. Induced means
देयर इज समथिंग इंटरवेंशन, मतलब कोई किसी की तरह इंस्ट्रूमेंटल एबॉर्शन हो सकता है, और डीएनसी हो सकता है, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है। डीएनई, डीएनई, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन. So one is spontaneous, another one is induced. In spontaneous abortion, it is isolated and recurrent. In induced, there is a MTP, medical termination of pregnancy. Another one is illegal, unsafe, that causes septicemia, septic condition. In cases of recurrent and isolated miscarriage, there are important types: threatened, inevitable, complete, incomplete, missed, and septic. These all types are very important for our exams. All types are comes in theory exam, in viva, and also comes in MCQ. MCQ में भी आता है, प्रैक्टिकल viva के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है. What is threatened abortion? Threatened abortion means, you can understand from the terminology. Threatened मतलब obviously, threatened just थ्रेट दे रहा है. क्या क्या है? इट इज अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल. मतलब रिकवरी इसमें पॉसिबल है. दो जगह पे दो टर्म है, एक है इम्पॉसिबल, एक है नॉट. तो ये हो गया है एबॉर्शन, इसमें कंटिन्यू हो सकता है. हेयर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी कैन कंटिन्यू. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? क्लिनिकल फीचर्स: ब्लीडिंग पर वेजाइना व्हिच स्टॉप स्पॉन्टेनियसली. ब्लीडिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय पेन. ब्लीडिंग होता है, उसके साथ पेन रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, पेन रहता है. पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या है? यूट्राइन साइज इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया. मतलब यूट्राइन साइज इज इक्विवेलेंट टू द जेस्टेशनल एज. मतलब यूट्रस का साइज एमेनोरिया के साथ कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है. इंटरनल ऑस इज क्लोज्ड. इंटरनल ऑस इज क्लोज्ड. एंड इन यूएसजी फिटस इज वायबल, मतलब लाइफ. सबकोरियोनिक, थोड़ा हेमरेज है. थ्रेट दे रहा है कि इसके लिए आपको आगे इंटरवेंशन चाहिए, दवाई की जरूरत है, और प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन दैट थ्रेटेंड एबॉर्शन. नाउ कम टू द इनएविटेबल. इनएविटेबल एबॉर्शन मतलब ऑब्वियसली इस पे होना ही है, प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल. द क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन इज प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल. इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है. ब्लीडिंग, पेन एंड शॉक. बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड दैट ब्लीडिंग कॉजेस हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोवॉल्यूमिया एंड कॉजिंग शॉक. साइज ऑफ द यूट्रस इज नॉट equal or less than the period of amenorrhea. Not equal to the period of amenorrhea. Usual, the size getting lower due to massive hemorrhage, and internal loss is open, and the product of conceptus can be failed. इसमें os देखो dilated है, ओपन है, एंड यूएसजी में फिटस इज डेड, मतलब वायबल नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी इज नॉट कंटिन्यूड. अनदर वन इज कंप्लीट एबॉर्शन. कंप्लीट मतलब एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, तो हेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड, बाहर आ गया है पूरा, फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. इट कम्स आउट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, दैट्स व्हाई इट इज, इसलिए इसको कंप्लीट एबॉर्शन बताते हैं. ब्लीडिंग स्टॉप्ड, साइज ऑफ यूट्रस स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया. जेस्टेशनल एज और यूट्रस के साइज मैच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज छोटा है, यूट्रस से एक्सपल्सन हो गया, यूट्रस का साइज छोटा हो गया है. इंटरनल लॉस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आ गया, तो इंटरनल लॉस बंद हो गया, पूरा चीज बाहर आ गया, कंप्लीट. दैट्स व्हाई इंटरनल लॉस इज क्लोज. देयर इज टू टाइप ऑफ लॉस: इंटरनल लॉस
and here is external os, two type of os. And USG showing cavity is empty, uterine cavity, uterine cavity, uterine cavity is empty. Okay. Now come to the most common type, that is incomplete abortion. Most common type incomplete. कुछ चीज यूट्रस के अंदर है, कुछ चीज आउट ऑफ द यूट्रस है, मतलब पूरा conceptus is not coming out of the uterine cavity. Here the entire products of conception are not expelled, but a part is left inside the uterine cavity. A part of uterine, part of conceptus remain in the uterine cavity. थोड़ा पार्ट यूट्रस के अंदर रह गया है, बाकी कुछ चीज बाहर आ गया है, तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग रहेगा. यूज ऑफ साइज ऑफ यूट्रस स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनिया. जितने जगह पे हेमरेज ज्यादा हो रहा है थ्रेटेंड एबॉर्शन को छोड़ के, बाकी सब जगह पे ऑल केसेस शोइंग द स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, यूट्रस का जो साइज है. एंड इंटरनल लॉस इज ओपन बिकॉज few products of concepts are inside the uterine cavity and few are outside. And USG showing retained product of concepts, कुछ चीज रिटेन है, मतलब उधर रह गया है उसके अंदर. ये मोस्ट कॉमन टाइप है इनकम्प्लीट. अनदर वन इज मिस्ड मिसकैरेज और अर्ली फीटल डिमाइस, जहां पे फीटस का डेड हो गया. व्हेन द फीटस इज डेड, व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर ए वेरिएबल पीरियड, बहुत टाइम से डेड फीटस यूट्रस के अंदर रह गया है. क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेगा, एब्सेंट और मिनिमल ब्लीडिंग, बहुत टाइम से है. इट कॉजेस मिनिमल ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग होगा तो इसको पता चल जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज को पता चल जाएगा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए इंटरवेंशन करेगा. बट इसका ब्लीडिंग ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो मिस्ड हो गया, मिस्ड मिसकैरेज. डेड फीटस है बट कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द प्रेग्नेंट लेडी. द साइज ऑफ द यूट्रस स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनिया, इसको देख के तब यूएसजी करने जाएगा, तब पता चलेगा कि द फीटस इज डेड. एंड इंटरनल ऑस इज क्लोज्ड. ओके. अनदर वन इज कैंसरस mole, blood mole or fleshy mole. Here, a pathological variant of missed miscarriage affecting the fetus before 12 weeks. 12 हफ्ता के पहले इस कंडीशन में मिसकैरेज हो जाता है. स्मॉल रिपीटेड हेमरेज, छोटा छोटा हेमरेज होता है इन कोरियोडेसिडुअल स्पेस एंड डिसरप्ट द विली फ्रॉम इट्स अटैचमेंट. विलास जो रहता है वो उसका अटैचमेंट छोड़ जाता है, बट डज नॉट कॉज रप्चर ऑफ द डेसिडुआ कैप्सुलरिस. डेसिडुआ के अंदर तीन चीज था, थ्री लेयर्स ऑफ डेसिडुआ देयर आर, बेसालिस, कैप्सुलरिस and another one is parietalis. Here the clot of blood with contained ovum is known as blood mole. Clot of blood with the contained ovum, blood clot उसके साथ ovum mixed हो जाता है, उसको blood mole बोलते हैं. The ovum becomes dead and is either completely absorbed or remain as a rudimentary structure. कुछ अपेंडिक्स रह जाता है, उसको रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, अपेंडिक्स जैसा रूडिमेंटरी ऑर्गन है. ग्रेजुअली द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड सराउंडिंग ऑफ द ओवम गेट्स एब्सॉर्ब्ड. ब्लड ओवम के चारों तरफ जो ब्लड रहता है वो एब्सॉर्ब्ड हो जाता है एंड द वॉल बिकम्स फ्लेसी, हेंस द टर्म फ्लेसी और कार्निशियस मोल. फ्लेसी और कार्निशियस मोल. इस पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. थ्रीटेंट, inevitable, complete, incomplete, missed. Here the best way to remember one is TMC. TMC. Threatened abortion, missed abortion, complete abortion. Here internal os is closed. Closed. You have to remember it because in MCQ question comes as in which abortion the internal os is open or closed. The most common question in MCQ. And it is most important. Another one is eye. Eye always remain open during the class. So eye open, eye means inevitable
एंड इनकम्प्लीट, देखो ओपन, ओपन विथ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फेल्ड, इनएविटेबल मतलब थोड़ा बहुत हेमरेज बहुत ज्यादा हो रहा है तो ओपन, इंटरनल लॉस, इनकम्प्लीट few parts remain inside the uterus and few parts remain outside the uterus, थोड़ा पार्ट यूट्रस के अंदर रहता है थोड़ा पार्ट यूट्रस के बाहर रहता है, तो इंटरनल ऑस शुड ओपन हियर इन टू केस ओपन। बाकी जो चीज वी हैव ऑलरेडी सेट, किस में वायबल है किस में वायबल नहीं है, किस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है किस में ब्लीडिंग कम होता है। जैसे इनएविटेबल एबॉर्शन में ब्लीडिंग पेन एंड शॉक ज्यादा होता है, फीटस डेड। मिस्ड एबॉर्शन मिनिमल ब्लीडिंग, फीटस डेड, complete bleeding stopped, okay, only in threatened abortion there is viable fetus and subchorionic hemorrhage. Now come to the topic, most common cause of spontaneous abortion, the chromosomal abnormality and genetic factor, defective germplasm. Most common chromosomal abnormality causing spontaneous abortion, spontaneously abortion हो जाता है, not induced, autosomal trisomy 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये तो सेक्स क्रोमोसोम ट्राइजोमी हो गया, 44 के अंदर ही कुछ ट्राइजोमी हो गया है, ऑटोजोमल ट्राइजोमी। मोस्ट कॉमन कॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट एबॉर्शन, क्रोमोसोमल एनोमली जो है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, रॉबर्टसोनियन बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन मतलब मोर देन 2 टाइम्स एबॉर्शन। So most common specific chromosomal anomaly associated with abortion is monosomy X 20% cases and trisomy 16 in 60%, 16% cases. Here most common cause of फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट एबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट एबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बार एबॉर्शन हो रहा है, 2 से ज्यादा और 2 से ऊपर, 2 से ऊपर जिसका एबॉर्शन हो रहा है, 2 बार से ऊपर, 3 बार 4 बार एबॉर्शन, उसमें क्या कॉज होता है, क्रोमोसोमल एनोमली जिसको बोलते हैं रॉबर्टसोनियन, रॉबर्टसोनियन बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसोनियन बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, ओके। मोस्ट कॉमन कॉज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट इज नॉट क्रोमोसोमल एनोमली, इट इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, मतलब सर्विक्स गेटिंग इनकॉम्पिटेंट, सर्विक्स गेटिंग लूज, उसके लिए पेसरी ट्रीटमेंट करना होता है, पेसरी यूज होता है जो नाक्स मॉस्टेटा में लिखा है, पेसरी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट एबॉर्शन इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी एंड इन्फेक्शन डू नॉट लीड टू एनी रिकरेंट एबॉर्शन। जैसे ये सबसे ज्यादा ध्यान पे रखना चाहिए, जैसे टॉर्च, TORCH, टॉक्सोप्लाज्मा से लेके रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, ऐसे जो जितना वायरस, जो जितना इन्फेक्शन है इज नॉट कॉजिंग रिकरेंट एबॉर्शन, दिस इज मिसनोमर एंड मिथ। इसमें क्या होता है, टॉर्च इन्फेक्शन किसी को हुआ है पहले, उसके मतलब इसके अगेंस्ट एक IgG, एक्यूट में IgG, एक्यूट में IgM बन गया है बॉडी के अंदर, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्रेग्नेंट लेडी एंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, इन क्रॉनिक IgG, क्रॉनिक IgG, क्रॉनिक केसेस पे IgG बड़ा रहता है, मतलब इट विल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द मैटरनल बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म। तो इन्फेक्शन एक बार हो गया मतलब लॉन्ग टर्म में IgG बन गया है, इन लॉन्ग टर्म
आईजीजी का लेवल ज्यादा रहता है, तो अगला बार जो प्रेग्नेंट होगा, ऑलरेडी आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन है बॉडी के अंदर, तो इट विल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। तो इसमें रिकरेंट एबॉर्शन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसनोमर था पहले, लोगों को पता होता था कि चलता पता था कि टॉर्च में रिकरेंट एबॉर्शन होता है, बट टॉर्च इज नॉट द कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन, ये याद रखना पड़ेगा। नाउ कम टू द इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी इज द कैरेक्टर पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन इन द सेकेंड एंड अर्ली ट्राइमेस्टर। सेकेंड एंड अर्ली मतलब 16 to 24 वीक्स में ज्यादा देखा जाता है। विथ बेलूनिंग ऑफ द एमनियोटिक सैक, बेलूनिंग हो गया है एमनियोटिक सैक का, इनटू द वेजाइना फॉलोड बाय रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड एक्सपल्शन ऑफ द यूजुअली लाइव फिटस। इसमें ठीक हो जाता है, लाइव फिटस रहता है, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है बहुत सारा, सिरोधकार ऑपरेशन, पेसरी ट्रीटमेंट, बहुत सारा ट्रीटमेंट है। ओके, नाउ रिकरेंट एबॉर्शन और हैबिचुअल मिसकैरेज। इसमें एक चीज में अंडरलाइन है, देखो, रिकरेंट एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज नॉट द हैबिचुअल एबॉर्शन। मतलब इंड्यूस्ड, किसी पेशेंट ने बार बार इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा रहा है, द पेशेंट समवन डूइंग रिकरेंट इंड्यूस्ड एबॉर्शन फॉर सम पर्पस, तो वो रिकरेंट और हैबिचुअल मिसकैरेज कैटेगरी में नहीं आएगा। तो recurrent miscarriage is defined as a sequence of 3 or more consecutive spontaneous abortion before 20 weeks। हम जो बोल रहे थे पहले से वो 3 है, 3 or more, 3 and more before 20 weeks। Okay, some however consider 2 or more standard, बट ज्यादा केसेस में 3 होता है। 2 किसी किसी केस में कोई कोई मानता है, किसी कोई कोई लोग नहीं मानता है। इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। हैविंग प्रीवियस वायबल बार्थ, पहले से उसका लाइव बार्थ का हिस्ट्री है। एंड वुमेन प्रोक्योरिंग 3 consecutive induced abortion is not habitual aborter। नाउ सेप्टिक एबॉर्शन, एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जहां पे क्लिनिकल एविडेंस है इन्फेक्शन का, कहाँ पे, यूट्रस एंड इज कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। यूट्रस में है और यूट्रस का जो कंटेंट है, बच्चा को भी सेप्टिसिमिया डेवलप हो गया है, तो इट लीड्स टू सेप्टिक एबॉर्शन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, सेप्टिसिमिया मतलब एंडोटॉक्सिन्स आर एक्सक्रीटेड, एंडोटॉक्सिन आ गया तो राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, राइज ऑफ टेम्परेचर एटलीस्ट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 24 आवर्स और मोर, 24 घंटा और 24 घंटे के ज्यादा 104 डिग्री, 100.4 डिग्री के ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव एंड पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू सेप्टिसिमिया बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट, इट कॉजेस ऑफेंसिवनेस, पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। जहां पे बैक्टीरिया होता है वहां पे सेप्टिसिमिया डेवलप होता है, एंड द डिस्चार्ज इज ऑलवेज पुरुलेंट, लाइक bacterial conjunctivitis causes purulent discharge from eye, any kind of bacteria having purulent discharge. Presence of other evidence of pelvic infection such as lower abdominal pain and tenderness, lower abdominal pain and tenderness due to septicemia, the formation of endotoxin causing abdominal pain and tenderness. In majority of cases infection occurs following illegal induced abortion। इलीगल एबॉर्शन में इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है प्रॉपरली नहीं यूज होता है, तो उस जगह पे सेप्टिसिमिया होने का चांस ज्यादा है, एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ड्यू टू सेप्टिक कंडीशन। नाउ कम टू ब्लाइटेड ओवम और साइलेंट मिसकैरेज, दोज अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस इन which fetal development is not observed with ultrasound, fetus का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, so that the only gestational sac is present, एक सैक है, एक बैग है, देयर इज ओनली बैग, बट बैग में कोई चीज सामान नहीं है, खाली है, देयर इज नो यॉक सैक। यॉक सैक, यॉक सैक हेल्प्स, ऐसे एक यॉक सैक रहता है येलो कलर का, हेल्प्स टू नारिश द ओवम, फर्टिलाइज जो ओवम है उसको नारिशमेंट करता है यॉक सैक, बट दे आर एब्सेंस ऑफ यॉक सैक इन जेस्टेशनल, ओनली प्रेजेंस ऑफ जेस्टेशनल सैक, एंड fetal tissue is absent and histological examination
द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्शन जो प्रोडक्ट है वो नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ फीटल पोल इन ए जेस्टेशनल सैक डायमीटर 3 centimeter and more than 3 centimeter. Uterus is be evacuated once the diagnosis is made. Evacuate हो जाता है, dilatation and evacuation, D&D. Now come to the induced abortion. We have said the induced abortion and recurrent abortion. Induced abortion means हर बॉडी हर चॉइस, मतलब इंड्यूस किसी ने एबॉर्शन करवाना चाहता है, उसका मतलब दैट इज द चॉइस बाय द गर्ल, नॉट बाय हर हस्बैंड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका एक एक्ट है 1971, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट इज एमटीपी वाज पास्ड इन अगस्त 1971 and come into effect from April 1972। तो come into effect 1972, एक्ट पास हुआ था 1971। तो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है? एक हो गया थेराप्यूटिक इंडिकेशन, वन इज यूजेनिक, वन इज ह्यूमैनिटेरियन, मानविकता के खातिर में हम क्यों उसको एबॉर्शन कर सकते हैं उस केस में। और एक हो गया सोशल, सोशल स्टिग्मा एक है, उसके लिए वो एबॉर्शन करना चाहता है। ये चार चीज है। थेराप्यूटिक्स के अंदर क्या है? व्हेन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डेंजरस, endanger the life of woman और may cause serious injury टू हर फिजिकल मेंटल हेल्थ, ऐसा स्थिति में है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उस मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट को देख के जो सीवियर एनीमिया है पेशेंट को, यू कैन डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी, तो उसके लिए उसी टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। एक हो गया थेराप्यूटिक। दूसरा नंबर पे है यूजेनिक, व्हेन देयर इज a risk of child being born with serious physical or mental abnormality, बच्चा का जो स्थिति है दैट इज नॉट गुड, बच्चा का एनेंसेफली है फिजिकल स्टेट में, डाउन सिंड्रोम डेवलप किया है, नुकल ट्रांसलेशन से दिखा जा रहा है यूएसजी में, तो यू कैन अबॉर्ट दैट fetus or embryo. If the pregnant woman is treated like drugs, thalidomide is very much important. It causes phecomelia, short hand, like cortisone, aminopterin, antibiotic drugs, and or she consumes hallucinogens and antidepressants drugs. Thalidomide is very dangerous, causing phecomelia. And mother is treated with X-ray, repeated exposure in X-ray, X-ray पे बहुत बार उसका एक्सरे हो गया है, तो उसी के केस में हम लोग नहीं कर सकते, कंटिन्यू कर सकते प्रेगनेंसी को। यू कैन स्टॉप द प्रेगनेंसी। एंड इन केसेस ऑफ इंसेनिटी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स दोनों में इंसेनिटी, उस केस में हम लोगों को अच्छा होगा एक मतलब एमटीबी करवा देना अच्छा रहेगा, बिकॉज वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसको ख्याल भी रखना पड़ेगा। एक बच्चा आ गया है, उसको देखभाल के लिए लोग होना चाहिए, बट इंसेनिटी के लिए वो नहीं कर पाएगा। ह्यूमैनिटेरियन, जिसका रेप हो गया है, यू कैन डू एमटीपी इन दैट केस, एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन का जरूरत होता है रेप केसेस में। एंड अनदर वन इज सोशल, व्हेन द प्रेगनेंसी हैज रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, किसी ने नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लिया, कॉन्डोम यूज, ओसीपी का यूज, इमरजेंसी पिल का यूज, बहुत सारा यूज किया है, बट दोज मैरिड वुमेन और विच इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजुरी टू हर मेंटल हेल्थ, वो नहीं लेना चाहते, उसका 2 या 3 बच्चा हो गया है, दूसरा वो तीसरा नहीं लेना चाहता है। सोचो किसी का एक है, वो दूसरा नहीं लेना चाहते, तो इन दैट केस गो फॉर एमटीपी। व्हेन द सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज नॉट गुड, नॉट कॉम्पिटेंट, उसके साथ नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिकली नॉट स्टेबल, तो इन दैट केस मदर्स का हेल्थ का इशू हो सकता है, फिनेंशियल बर्डन हो सकता है, इन दैट केस एमटीपी ऑल्सो, इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है।
ओके। टर्मिनेशन कितना टाइम तक हो सकता है? परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बट एक सिंगल डॉक्टर if the period of pregnancy below 12 weeks, if the pregnancy below 12 weeks में होता है तो उसमें सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन लेने में चला जाएगा. बट इफ द प्रेगनेंसी बिटवीन 12 to 20 weeks, इन दैट केस टू डॉक्टर्स मस्ट एग्री, दोनों डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए. वंस द ओपिनियन इज फॉर्म, द टर्मिनेशन कैन बी डन बाय एनी डॉक्टर. दोनों डॉक्टर का तब जरूरत नहीं हो, एक डॉक्टर ही उसका एमटीबी कर सकता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन कर सकता है. द कंसेंट ऑफ द वुमेन इज रिक्वायर्ड, ओनली वुमेन्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ एबॉर्शन. महिला का ही सिर्फ कंसेंट चाहिए. इफ बिलो द 18 years and mentally ill lady, in that case guardian's consent is required. In that case, the minor cases, consent of husband is not necessary. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर बॉडी हर चॉइस, इसलिए हस्बैंड का कोई इसका संबंध नहीं है. एबॉर्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हस्बैंड इफ द वुमेन हरसेल्फ इज नॉट विलिंग. हस्बैंड बोल रहा है इसके लिए वो एबॉर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है. वुमेन का विलिंग होना चाहिए, वुमेन का कॉन्सेंट होना चाहिए. नाउ कम टू द टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी. दिस इज ऑल्सो अनदर टॉपिक जहाँ पे ब्लीडिंग और हेमरेजेस का चांसेस है. जैसे एबॉर्शन में हेमरेज होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड हेरिडिटी फॉर्म में मोल में होता है. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन व्हिच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड आउटसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी. ये हो गया एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियम. ईस्थमस, ये हो गया एम्फुला. इधर चला जाता है फिम्ब्री, फिम्ब्रियल एंड. तो ये आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी को छोड़ के उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है एंड प्रेगनेंसी ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक. अदर देन द नॉर्मल प्लेस, इसको एक्टोपिक बोलते हैं. प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में होता है, तो अदर देन यूट्रस. ओके. नाउ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, किस किस जगह पे इम्प्लांट हो सकता है जो फॉर्म हुआ है जाइगोट. एक हो सकता है एक्स्ट्रा यूट्राइन. एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब यूटेरस के बाहर, जैसे ट्यूबल ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, एफपी. 97% केसेस में फैलोपियन ट्यूब, 0.5 केसेस में 5% केस इन ओवरी, इन एब्डोमिन 1% केसेस. नाउ व्हाट इज यूटेराइन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन? सर्विक्स बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कम है. एंगुलर जो प्लेस है, कॉर्नुअल जो एंड है, एंड सीजेरियन स्कार. यूट्राइन इम्प्लांटेशन बट एक्टोपिक. यूजुअली एक्टोपिक एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट होता है, बट यूट्रस में ही है. बट यूट्रस का दूसरे जगह पे हो रहा है, नॉर्मल जगह पे नहीं हो रहा है, फंडस पे नहीं हो रहा है. सर्विक्स पे हो गया, एंगुलर पार्ट में, कॉर्नुअल एंड. सीजेरियन का जो स्कार है, पहले प्रेगनेंसी था उसका जो सीजेरियन स्कार मार्क है यूट्रस के अंदर, उस जगह पे इम्प्लांट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एंड इन एक्स्ट्रा यूट्राइन केसेस द मोस्ट कॉमन इज ट्यूबल. एंड ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे वाइडेस्ट पार्ट है एम्फुला. एम्फुला थोड़ा वाइड पार्ट है. इन्फंडिबुलम है, उसके बाद है एम्फुला. तो एम्फुला में सबसे ज्यादा, द मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज एम्फुला, 55%. क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आएगा तो आंसर एम्फुला होगा. इफ द ट्यूब इज नॉट मेंशन्ड, देन isthmus, then infundibulum, then interstitial place. And in abdomen, primary, very rare. सेकेंडरी केसेस में इंट्रापेरिटोनियल एंड एक्स्ट्रापेरिटोनियल, ये भी बहुत अनकॉमन है. मोस्ट कॉमन इज एम्फुला. नाउ कम टू द ट्यूबल प्रेगनेंसी. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन. पहले हिस्ट्री था उसका ट्यूबल लाइगेशन का. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो द कॉज ऑफ चांस ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी.
ट्यूबल रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, ट्यूब में कोई छेड़खानी किया है, ट्यूब में कोई ऑपरेशन सर्जरी किया है, तो उस जगह पे भी स्कार बन गया तो उस जगह पे इम्प्लांट हो गया। अनदर वन इज आईओटी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जहाँ पे उस जगह पे इंजरी हो रहा है एंड एट दैट साइड इट कैन बी इम्प्लांटेड। ओके। चेंज इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या चेंज है? ऑल चेंजेस ऑकर इन द डेसिडुआ एक्सेप्ट फॉर देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरियोनिक विली, कोरियोनिक विली नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरियोनिक विली। सिम्टम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हेमरेज पहले ही हम लोग डिस्कस किए, वेजाइनल ब्लीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है मतलब पेन होगा, ज्यादा ब्लीडिंग है मतलब बहुत ज्यादा पेन। एब्डोमिनल पेन, 100% केसेस में एब्डोमिनल पेन होगा ही होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इज इक्विवेलेंट टू appendicitis if it is implant in the right side of the fallopian tube. It is most consistent symptom in ectopic pregnancy, and amenorrhea तो रहेगा ही in 75% cases, absence of menstruation. So amenorrhea, abdominal pain and vaginal bleeding are seen. सी ट्रायड, इसके साथ और क्या होगा? प्रेगनेंसी है तो नौसिया, वॉमिटिंग, फेंटिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, पेन है तो सिंकोपल अटैक और शॉक हो सकता है। पेशेंट में प्रेजेंट इन शॉक विथ पैलो, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कोल्ड, क्लाइमिंग एक्सट्रीमिटी। इफ रप्चर्ड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, इसी केस में ये हो सकता है। मोड ऑफ टर्मिनेशन, कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं इसको? ट्यूबल मोल, ट्यूबल एवर्सन। कॉमन मोड ऑफ इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन एम्फुला और इंफेंटिबुलम। ट्यूबल एवर्सन में केसेस में एम्फुला पे इम्प्लांट होता है तो उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। ट्यूबल रप्चर, किस एज में किस वीक्स में? which part of the fallopian tube is ruptured? 6 to 8 वीक्स में इस्थमल पार्ट रप्चर होता है यूजुअली। एम्फुला रप्चर होता है 8 to 12 वीक्स में। एम्फुला, फैलोपियन ट्यूब का एम्फुला, नॉट एम्फुला ऑफ बैटर, वो दूसरे जगह पे है, डियोडनम। इंटरस्टिशियम कैन सर्वाइव अप टू 4 मंथ्स, मतलब अप टू 12, अप टू 16 वीक्स। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी रेयर, और इसमें क्या होता है? ट्यूबल परफोरेशन चांसेस रहता है। डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, बट यूएसजी के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड द एब्सेंस ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, यूट्रस के अंदर प्रॉपर जो प्लेस पे यूट्राइन प्रेगनेंसी रहता है वो नहीं है। मैनेजमेंट, रिससिटेशन एंड लेपारोटोमी एक साथ करना पड़ेगा, पहले रिससिटेट उसके बाद लेपारोटोमी, ऐसा नहीं होगा। रिससिटेशन एंड लेपारोटोमी मतलब क्विक इन एंड क्विक आउट। लेपारोटोमी का जो प्रोसीडियर है उसका मतलब है क्विक इन एंड क्विक आउट ऑफ द कंसेप्शन। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको क्विक इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा एंड बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो शॉक में चला जाएगा और वुमेन का डेथ हो सकता है। इन अनरप्चर्ड केसेस, अनएक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जहाँ पे रप्चर नहीं हुआ है उस केस में होप रख सकते हैं, एंड यू कैन गो ऑब्जर्वेशन एंड इट विल स्पॉन्टेनियसली रिजोल्यूट, मतलब स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है इफ अनरप्चर्ड, केस इज अनरप्चर्ड। इंडिकेशन क्या क्या है? इंडिकेशन दूसरा पैरामीटर्स क्या होगा? इनिशियल में सेरम एचसीजी 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, उसके ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम होगा, एंड सब्सिक्वेंट लेवल्स आर फॉलिंग, उसके साथ थोड़ा एचसीजी का लेवल कम होगा। जेस्टेशनल सैक साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर, फीटल हार्ट साउंड नहीं रहेगा इन ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग रप्चर ऑन ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी, बिकॉज एक तो यूट्रस में नहीं है, दूसरे पार्ट पे है, उधर एविडेंस कुछ मिलेगा नहीं। इफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट फेल्स, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और मेडिकल सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है,
स्टडीफोर्ड क्राइटेरिया, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए रूबिन्स क्राइटेरिया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, समझने का कुछ है नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। ओवारियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्पाइजेलबर्ग्स क्राइटेरिया, स्पाइजेलबर्ग्स क्राइटेरिया डिफरेंशिएट्स ओवारियन एक्टोपिक एंड अदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये याद रखना पड़ेगा। ओवारियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है क्राइटेरिया है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, अदर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है ये मेंशन किया है, डिफरेंशिएट किया है। द मोस्ट कॉमन ऑफ ओवेरियन प्रेगनेंसी जो होता है, मतलब ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ज्यादा केसेस में हम बताए जहां पे ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब उधर पेन भी बहुत ज्यादा है, बट इन ओवेरियन प्रेगनेंसी, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है पेनलेस। नाउ कम टू जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जीटीडी, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज encompasses a spectrum of proliferative abnormality। ट्रोफोब्लास्ट में प्रोलिफरेशन हो गया, प्रोलिफरेटिव एब्नॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। क्या होगा, हाइडिफॉर्म मोल, इन्वेसिव मोल, हाइडिफॉर्म मोल आगे पढ़ेंगे। प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एंड कोरियोकार्सिनोमा, ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर के अंदर पड़ता है। दो होता है, एक बिनाइन होता है मोल, एक मैलिग्नेंट होता है। एक इन्वेसिव इनसाइड द यूट्रेन मायोमेट्रियम, और एक होता है कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोनिक भिलाई में कैंसर डेवलप किया। और एक होता है हाइडिफॉर्म मोल, जहाँ पे पहले प्रीवियस क्लासेस I have already discussed that hydiform mole is the condition where vitamin A deficiency happens. Hydiform mole, the vesicular mole, it is a vesicular mole. Here is a picture, hydiform mole, like jelly like, इसको क्या बोलते हैं, expulsion of grape like vesicle per vagina, white current और red current juice। हाइडिफॉर्म मोल क्या है, पार्टली डिजेनरेटिव पार्टली प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन यंग कोरियोनिक विली। यंग कोरियोनिक विली के अंदर दो चीज एक साथ होता है, प्रोलिफरेशन एंड डिजेनरेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिजेनरेशन दोनों एक साथ होता है। बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ कोरियन, बिनाइन है, इज अ बिनाइन कंडीशन। कोरियन जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल, मैलिग्नेंसी का चांस है बट बहुत कम। इसका इंसिडेंस 1 in 400 प्रेगनेंसी। दो टाइप्स है, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट इज 44XX, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, एंड इनकम्प्लीट में 69XXY एंड 69XYY। दो कैरियोटाइप है, कंप्लीट में कम है, इनकम्प्लीट में ज्यादा है, ये याद रखना होगा। माइक्रोस्कोप, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन द विली, ओवरियन चेंजेस, बायलैटरल लुटियन सिस्ट 50% केसेस में स्पॉन्टेनियसली रिग्रेशन हो जाता है विद इन 2 months आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ मोल्स। लुटियल जो सिस्ट है 2 महीने के अंदर आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ मोल्स, जो हाइडिफॉर्म मोल है बाहर आने के बाद लुटियल सिस्ट का जो साइज वो रिग्रेस हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या होगा, एमेनेरिया होगा, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर, 8 से 12 वीक्स का एमेनेरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। इसका फॉर्म कैसा है, व्हाइट करंट विद रेड करंट जूस। इसका जैसे हम लोग पढ़े थे सेबाइना, पार्टली क्लॉटेड पार्टली फ्लूइड, थोड़ा उसी का टाइप होगा। फिश वाटर लाइक, लाइक सिकेल कॉर्नुटा, फिश वाटर लाइक, ऐसा कुछ पहले उसका आएगा, फिर कंप्लीट वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा। हाइपरेमेसिस ग्रेविटिरम, इस केसेस में बहुत ज्यादा आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी उसका हाइपरेमेसिस, मतलब बहुत ज्यादा एमेसिस वॉमिटिंग होगा एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। इन्वेस्टिगेशन, HCG is very high in ectopic pregnancy. We have shown 1000 international unit per liter, but here 1 lakh international unit per ml, rapidly increasing HCG. And in USG, very important, snowstorm appearance or bunch of grapes appearance in USG, snowstorm appearance. Management suction evacuation, follow up till HCG becomes normal.
नेगेटिव इन एट 1 वीक इंटरवल, मतलब वो एचसीजी का लेवल एटलीस्ट 1 वीक के इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। फॉलो अप इज नेसेसरी फॉर 1 ईयर बिटवीन एवरी 4 to 8 वीक्स थ्रू, मतलब उसको हर 4 और 8 हफ्ता अंतर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब उसका कंडीशन नॉर्मल रहेगा तभी भी। कोरियो कार्सिनोमा, कोरियोनिक विली के अंदर कैंसर, मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ यूट्रस, मतलब मोस्ट डेंजरस। मोस्ट कॉमन स्प्रेड क्या होता है? हेमाटोजेनस स्प्रेड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कोरियो कार्सिनोमा, लंग्स, वेजाइना, पेल्विस, लिवर एंड ब्रेन। सिम्टम: irregular bleeding, uterine hemorrhage following the abortion, molar pregnancy or normal delivery. Remember, snowstorm appearance on USG means hyatiform mole, and snowstorm appearance in X-ray is means choriocarcinoma. ट्यूमर मार्कर्स, क्या क्या ट्यूमर मार्कर्स? ट्यूमर मार्कर्स are choriocarcinoma beta HCG, and tumor markers for placental slide trophoblastic tumor is HPL. Okay. Now come to the multiple pregnancy. This is uh, normal. This is the normal physiology. We can see the multiple pregnancy, twin, triple, quadruplet, quintuplet, and sextuplet. When more than one fetus simultaneously developed in the uterus is called multiple pregnancy. Simultaneous development of two fetus is the most common. सबसे ज्यादा केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी मिलता है। कितना मिलता है ट्विन प्रेगनेंसी? 1 case per 89 pregnancy. Every 89 pregnancy there is a chance of one twin pregnancy. ट्विन, इसको हेलिन्स रूल बोलते हैं, आगे बताएंगे। ट्रिपलेट मतलब 3, 4 फीटस मतलब क्वाड्रुपलेट, 5 फीटस मतलब क्विंटिपलेट, 6 फीटस मतलब सेक्सटुपलेट। क्या है ट्विन प्रेगनेंसी में? सबसे जो इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ 2 फीटस इन द यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। दो वेराइटी है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, 80% केसेस में डाइजाइगोटिक ट्विन होता है, एंड 20% केसेस पे मोनोजाइगोटिक ट्विन। मतलब डाइजाइगोटिक इज रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा, दो ओवम से, दो ओवम। डाइजाइगोटिक दो ओवम है, दो ओवम को दो स्पर्म फर्टिलाइज किया। मोनोजाइगोटिक वन सिंगल ओवम, उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर माइटोसिस डिवीजन, ये हो गया मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक ट्विन, रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा बाय टू स्पर्म ड्यूरिंग सिंगल ओवारियन साइकिल। एक ही साइकिल के अंदर दो ओवा एंड दो स्पर्म। तो इसमें क्या होगा? कंटेंट टू एमनियन एंड टू कोरियन, ऑल्सो नोन फॉर फ्रेटर्नल और बाइनोवुलर ट्विन्स। नाउ कम टू, इस एक केस 80% केसेस में डाइजाइगोटिक ट्विन मिलता है, एंड 20% केसेस में मोनोजाइगोटिक ट्विन मिलता है। जैसे एक्स पे क्या है? रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द सिंगल ओवम, एक ही ओवम है, दो स्पर्म फर्टिलाइज हो गया ड्यूरिंग सिंगल ओवरियन साइकिल। डिविजन्स ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिकल और यूनिओव्यूलर ट्विन। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन जो बच्चा में एक ही जैसा दिखता है, दोनों लड़की एक है, दोनों लड़का का पूरा फीचर्स, पूरा जो फेनोटाइप है सेम है उसका, आइडेंटिकल ट्विन फ्रॉम मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर तीन चीज, एक्चुअली चार चीज होता है। क्या होता है देखो? मोनोजाइगोटिक ट्विन, द टाइम एट विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज डिवाइड डिसाइड्स द कोरियोनिसिटी, मतलब इसका कोरियन कितना होगा, एक होगा, दो होगा, उसका टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और किस टाइम पे वो डिवाइड हो रहा है ओवम, वो डिसाइड करता है। डाइकोरियन होगा, मोनोकोरियन होगा, मोनोएमनियन होगा, क्या होगा? इफ लेस देन 3 days
बिफोर मोरुला स्टेज, दैट मीन्स डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, दो कोरियन दो एमनियन, डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक दोनों है। ये हो गया डाई एमनियोटिक एमनियोटिक सैक, ये हो गया कोरियन कोरियोनिक सैक। इसमें देखो मोनोकोरियन, बाहर का जो मेम्ब्रेन है मोनो एक है, एमनियोटिक सैक डाई है दो है। ठीक है। इफ द डिवीजन टेक्स प्लेस, जो इधर मेंशन किया है 3 आवर्स 3 डेज लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक 30% केसेस। इफ द डिवीजन टेक्स प्लेस बिटवीन 4th and 8th डे, ये डेवलप करता है डाई एमनियोटिक बट कोरियन इज मोनो, सिंगल कोरियन। 4th and 8th डे डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, मोस्ट कॉमन टाइप। इफ ओवम डिवाइड्स मोर देन 8 डेज, आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद हो रहा है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, आफ्टर 2 वीक्स 2 हफ्ते के बाद डिवाइड हो रहा है, इट कॉजेस कंजॉइंट ट्विन, वेरी पैथेटिक। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ऑन एक्सट्रीमली रेयर ओकेजन डिविजन ऑकर्स आफ्टर 2 वीक, जहाँ पे आफ्टर 14 डेज के बाद हो रहा है, 14 डेज के बाद हो रहा है फर्टिलाइजेशन, डेवलप द एम्ब्रियोनिक डिस्क रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन, चांसेस लेस देन 1%। इसको बोलते हैं सियामीज ट्विन। ये थाईलैंड का एक टर्म है सियामीज ट्विन, थाईलैंड में पहले केसेस में मिला था सियामीज ट्विन, फर्स्ट केस सीन इन थाईलैंड। 4 टाइप्स ऑफ फ्यूजन में occur. One is theracophagous, most common. You can see thorax are attached one and another. Thoracophagous, most common. Pyophagus, posterior fusion, the buttock region is fused. Craniophagous, the cephalic portion, brain portion is fused. And ischiophagous, मतलब caudal part, ischial part is fused. If the ovum division occurs after 14 days or 2 weeks, very important, you have to remember it. The mitotic division occurs after 14 days or 2 weeks. इस केसेस में फ्यूजन होता है। देखो हेलिन्स रूल इसके लिए मल्टीपल प्रेगनेंसी में कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे सिंगल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन प्रेगनेंसी, चांस है 1/89 प्रेगनेंसी। इफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का चांस है 1/89 स्क्वायर, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। ट्विन में 1/89, ट्रिपलेट में 1/89 स्क्वायर। फिर आ गया है क्वाड्रुपलेट, मतलब 4 बच्चा एक साथ होने का चांस 1/89 क्यूब, ऐसे करके होगा। ट्विन से स्टार्ट होता है, ट्विन प्रेगनेंसी पर 1/89 केस, इसको हेलिन्स रूल बोलते हैं। आगे आगे क्वाड्रुपलेट क्विंटिप्लेट मतलब 5 प्रेगनेंसी, मतलब इसको हो जाएगा 1/89 n-1, प्रेगनेंसी का जो है n-1, 5 प्रेगनेंसी है तो 5 प्रेगनेंसी है उसका, सोचो तो हो जाएगा 89 टू द पावर 4, ऐसे करके होगा हेलिन्स रूल। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पायोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट। क्रेनियोफेगस, cranium. Ischiophagous, ischium is attached. You can see. Now come to superfecundation. It is fertilization of two different ova released in the same cycle. एक ही साइकिल में दो different ova आ गया by separate acts of coition within a short period of time. एक मूवीज था, गुड न्यूज करके एक मूवीज था कुछ शायद, उसमें है सुपर फेकंडेशन है। उसमें दो अलग अलग ये सेम साइकिल में दो अलग अलग ओवामा है, दो अलग अलग पार्टनर डूइंग क्वेशन एंड कॉजिंग डिफरेंट fecundation. Now come to superfetation. It is a fertilization of two ova released in a different menstrual cycle. अलग अलग menstrual cycle में दो अलग अलग ओवम आया and it causing it doing the fertilization. इसमें fertilized हो गया है, इसको superfetation बोलता है। दो अलग अलग menstrual cycle में दो अलग अलग ओवम आया है और ये हो गया सेम साइकिल पे दो अलग अलग पार्टनर सेक्स किए, उसके बाद ओवम गेटिंग फर्टिलाइज, इस पे होता है सुपर फेकंडेशन।
नाउ कम टू द टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर। इसमें देखो पॉलीहाइड्रोमनियस, जहाँ पे लिकर जो अमाउंट है मोर देन 2000 ml, किस किस केस में हो सकता है? एनेन्सेफाली में हो सकता है, ओपन स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, इसोफेगियल एंड डियोडिनल एट्रेसिया, डियोडिनम एंड इसोफेगस इज ऑब्स्ट्रक्टेड, एट्रेसिया, क्लेफ्ट लिप, जहाँ पे बच्चा का पानी पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, लिप में प्रॉब्लम है, नेक मासेस ज्यादा है, हाइड्रोप्स फिटालिस आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप किया है, उस केस में हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 24 सेंटीमीटर ऑन यूएसजी, इसमें पॉलीहाइड्रोमनीज, इसका 4 पॉकेट होता है, हर एक पॉकेट 6 सेंटीमीटर करके, 5 सेंटीमीटर करके होता है यूजुअली। प्लेसेंटल कॉज क्या है? कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है। मैटरनल कॉज सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, डायबिटीज, कार्डियक और रेनल डिजीज, इस केस में पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है। ओलिगोहाइड्रोमनियस, जिस केसेस में लीकर एमनी, देखो क्या क्या है। देयर इज polyhydramnios and another one is oligohydramnios. Oligo means come, when the liquor amni is less than 200 ml at term and the amniotic fluid index is amniotic fluid index is less than 5 centimeter on USG. How you can understand the index of amniotic fluid? जैसे पॉलीहाइड्रोमनियस में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो इसका क्वाड्रेंट है, यूट्राइन कैविटी के अंदर क्वाड्रेंट है, हर एक क्वाड्रेंट का एक मेजरमेंट होता है, कॉर्नर से एक दूसरे कॉर्नर का एक मेजरमेंट होता है, तो 4 कॉर्नर होगा। तो इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल, इन हाइड्रोमनियस इट इज नॉर्मल, इन केसेस ऑफ नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी 5 सेंटीमीटर, अप टू 5 सेंटीमीटर in each pockets, 4 pockets. If each pocket size more than 6 centimeter, that means 6 into 4, 24 centimeter. That is amniotic fluid index. Amniotic fluid index. Amniotic fluid index. ये हो गया पॉलीहाइड्रोमनियस का। और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5, मतलब ये जो पॉकेट है बहुत छोटा है, ईच पॉकेट साइज लेस देन इक्वल टू 1 to 2 सेंटीमीटर, हर एक पॉकेट का जो साइज है वो छोटा होता है, इस 1 to 2 सेंटीमीटर, दैट्स वाई amniotic fluid index is less than 5 in cases of oligohydramnios. Oligohydramnios में पॉकेट छोटा छोटा होता है, एक एक पॉकेट का जो डिस्टेंस है ये हो गया एक डायमीटर पॉलीहाइड्रोमनियस केसेस में, और ओलिगोहाइड्रोमनियस में बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा है। तो पॉकेट, एक एक पॉकेट जितना छोटा होगा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स उतना कम होगा। किस केस में हो सकता है? फिटल कॉज, मैटरनल कॉज, फिटल कॉज एंड मैटरनल। फिटल कॉज है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी, रेनल एजेनेसिस, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी, यूरिन आउटपुट ठीक से नहीं हो रहा है, तो यूरिन बाहर नहीं आ रहा है बच्चा का, तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट गेटिंग रिड्यूस्ड, कम हो जाता है। पोस्ट मैच्योरिटी, बहुत देर से मैच्योर हुआ है तो फ्लूइड कम हो गया। एंड यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चा फिटस का ग्रोथ रिटार्डेड हो गया, इस केस में ओलिगोहाइड्रोमनियस मिलता है। मैटरनल केस, हाइपरटेंशन एंड डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन केसेस जहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियस मिलता है। जैसे हम लोग को लाइकोपोडियम केस में दिखा है ना, फिटस
appears somersault, फिट इतना फ्लूइड है, इतना ज्यादा पॉलीहाइड्रोनियस मदर है, उसका बच्चा फिटस समरसॉल्ट दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ twin pregnancy and induced abortion, miscarriage, and the cause of different cause of hemorrhage. Thank you very much. Good night.